Good morning to all of you. My name is Ajita. I warmly welcome to all of you behalf of FSSCI on आयुष्मान भाव सीरीज 17th सेशन। यह पूरे देश में आयुष्मान भाव सीरीज पूरे देश में खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दों पर बात करने के लिए करवाया जाता है। इसमें खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य मानदंड के बारे में अनेक विषयों पर बातचीत की जाती है। आज का विषय आयुर्वेदिक आहार के बारे में है। आज हम आयुर्वेदिक आहार के बारे में जानेंगे कि आयुर्वेदिक आहार से हमको क्या जानने को मिलता है, आयुर्वेदिक आहार क्या होते हैं और इनके आयुर्वेदिक आहार के फायदे क्या होते हैं। अब मैं हमारी मॉडरेटर मैम मिस अरुणा बंती मैम से परिचय कराना चाहती हूँ। अरुणा बंती मैम FSSAI में डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने 18 ईयर्स से ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल, फूड टेस्टिंग एंड RCD जैसे अन्य विभागों में काम किया है। मैम ने MSc जैव विज्ञान यानी बायोकेमिस्ट्री में किया है। स्पेशलिटी ISO/IEC में 1725 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज को स्टैंडर्ड मेंटेन करने में हेल्प करा है। Dr. Anupam Srivastava sir is MD and PhD in Ayurveda. Sir is professor and HOD at RS and PK, medical superintendent of NABH Hospital, Department of Rasa Shastra and Bhaishashya Kalpana National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan. Very warm welcome to you, sir. We also have Dr. Tanuja who will be joining shortly. I think she is in transit. बहुत जल्दी वो हमें join करेंगी. So Professor Tanuja Manoj Nesari हैं, Madam MD हैं, PhD Ayurveda में. She is Director Institute of Teaching and Research in Ayurveda at ITRA, Gurdwara Road, Jamnagar. We also have Dr. Komal Sherawat. She is BAMS CCKS Consultant FSSAI New Delhi. तो आज के जो बहुत इंटरेस्टिंग पैनल है, जब तक अरुणा जी ज्वाइन करती हैं, मैं तब कोमल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि कोमल जी इस डिस्कशन को आप फॉरवर्ड करें और कन्वर्सेशन की स्टार्ट करें। आप डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव से। Good morning, Dr. Anupam Srivastava, sir. I have a just question for you. Like, what is Ayurveda Ahar? As per Indian regulation, that is Food Safety and Standards Ayurveda Ahar Regulation 2022. Can you please answer this question for the members? Namaste, very good morning to all of you. Sabhi ko namaste, very good morning. Today's topic is very interesting, Ayurveda Ahar. If we have a time, could have add on the history also. Couple of years back, 2022 में, जब entirely the world was grappling in the COVID-19, one of the biggest problem of the century, उस समय FSSAI and Ministry of Ayush all joined together to bring a certain regulation, particularly in the field of the food, and that to a newer category was introduced, that is a Ayurveda Ahar. This regulation finally came, a lot of time was spent making all these regulation. It came in May 2022. So this regulation came under the ambit of FSSR, Food Safety Standards Regulation. And as per the regulation, Ayurveda Ahar is a food, a category of the food, special category of the food, which has been described in a authoritative books of the Ayurveda. And if you talk about the Ayurveda, those books are 71 in nature, number. तो 71 किताबों में वो आयुर्वेदा जो रेसिपीज डिस्क्राइब्ड हैं, उनके सिवा वो और भी फूड के कैटेगरीज जो कि आयुर्वेद के बेसिक्स से मैच करते हैं, which fall in the alignment of those things, वो तमाम प्रिपरेशंस को हम आयुर्वेद आहार की कैटेगरी करेंगे। लेकिन उनमें जो शेड्यूल ई जिसमें नार्कोटिक ड्रग्स है उनको नहीं लेते हैं, भस्में नहीं लेते हैं और आयुर्वेद की दवाएं नहीं लेते हैं। तो वो फॉर्मुलेशन जो 71 किताबों में लिखा हुआ है, या इवन वो तमाम इंग्रेडिएंट या वो तमाम प्रोसेसेस जो कि डिस्क्राइब नहीं है मैन्युफैक्चर करता है, तो वो आयुर्वेद आहार की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। What do you, Komal? Thank you, sir. Over to Aruna ma'am. I'm audible? Yes. You are audible. I hope I am also audible. Yes, ma'am.
Yeah. So next question goes to Dr. Komal. How does the manufacturing of Ayurveda Ahar govern in India? Thank you for the question, ma'am. Myself, Dr. Komal. Very starting, I want to thank FSSAI for giving me this opportunity. And I also want to appreciate FSSAI and Ministry of Ayush for taking such a good initiative for regulating Ayurveda Ahar. So the manufacturing of Ayurveda Ahar basically is comes under the Food Safety and Standards Act 2006 and Food Safety and Standards Ayurveda Ahar Regulation 2022, for which Anupam sir very well explained the definition of Ayurveda Ahar. In the same regulation, the food business FBO shall manufacture Ayurveda Ahar in accordance to the Schedule 4 of Food Safety and Standards Licensing and Registration Food Businesses Regulation 2011. So there are 4 points which manufacturer have to keep in mind, like to avoid any contamination with any kind of drug or like for maintaining the hygiene. So a food business operator should have a separate line for manufacturing of Ayurveda Ahar. And for the manufacturing processes, they can also go to the like the recipes which are mentioned in our Ayurvedic text, the process and the process of cooking which is mentioned in the text of Ayurveda Ahar authoritative textbooks, which are mentioned in the schedule. Manufacturing and packing is permitted for Ayurveda Ahar, but they have to kept in mind the quality and the characteristics of the recipes or the products are should be in close similarity with the process or the recipes which are mentioned in Schedule A. Thank you, ma'am. Over to you. Yeah. So thank you, Dr. Komal. So as Professor Dr. Tanuja Nisri ma'am has also joined, she is MD and PhD in Ayurveda and Director of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Gurdwara Road, Jamnagar. So next question for ma'am is, what is Ayurveda Ahar? What is Ahar in Ayurveda? And what are the different categories of Ayurveda Ahar as per Ayurveda? Over to you, ma'am. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, आयुर्वेद में आहारम इति महाभैषज्यम ऐसे कहा है। तो आहार से जो रोज का हम खाते हैं अन्न, तो अन्न का जो आहार है वो एक आयुर्वेद के जो 3 उपस्तंभ है स्वास्थ्य के लिए, जैसे स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, एक आयुर्वेद का एक मुख्य उद्देश्य है, प्रिवेंटिव एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंटिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। आयुर्वेद ये नाम ही सुना देखा, तो आयुर्वेद इज अ नॉलेज सिस्टम ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। जैसे हिता हितम सुखम दुखम आयुष ऐसा कहा है, आयुषो वेदा ऐसे कहा है। सो इट इज अ वे ऑफ लिविंग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो हेल्दी, अच्छा, खुशनुमा और स्वस्थ जिंदगी जीने का एक रास्ता, ये मूल मंत्र और ज्ञान पद्धति मतलब आयुर्वेद है, आयु का ज्ञान है। तो ये कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, उसके क्या तरीके हैं? तो आयुर्वेद में ये पहले स्वस्थ रहने के 3 मुख्य दंड पिलर बताए, उपस्तंभ, जिसमें है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। मतलब रोज का खान पान, निद्रा रोज की नींद और ब्रह्मचर्य मतलब दैनंदिनी। तो लाइफस्टाइल, डाइट एंड प्रॉपर रेस्ट, ये जो व्यक्ति 3 अच्छी करता है वो इसमें ये पूरी जिंदगी स्वस्थ और खुशनुमा, क्योंकि किसी को खुश रखना है तो भी हम अच्छा खाना खिलाते हैं, ऐसे भी है ना। तो हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ के लिए पहला और मुख्य बिंदु है आहार। तो आयुर्वेद में आहार में खाली फिजिकल फिटनेस, जैसे हम कैलोरी कहते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड कैलोरी, इसको कन्वेंशनल डायटेटिक्स में, मॉडर्न डायटेटिक्स में फिटनेस के लिए, कैलोरी के लिए, बर्निंग जो फ्यूल है हमारे बॉडी का इंजन चलाने के लिए, आहार इज लाइक अ फ्यूल। आयुर्वेद ये फ्यूल जो है, ये इंजन गाड़ी जो हमारी है देह की, वो चलाने के लिए ये अच्छा ईंधन तो है, फ्यूल है, लेकिन ये शरीर, मन और आत्मा, माइंड, बॉडी एंड सोल, इन सभी को संतुलित रखना, अपने आप हार्मनी रखना, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सभी के लिए अच्छा आहार ये आयुर्वेद कहता है। तो आहार इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल टू रन द इंजन ऑफ ओनली नॉट ओनली माइंड बॉडी बट माइंड एंड स्पिरिचुअल। इसीलिए आहार को आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया है। वो बल, ऊर्जा, वर्ण, कॉम्प्लेक्शन अच्छा करना है, ब्यूटीफुल रहना है, इट इज द टाइप ऑफ डाइट यू टेक।
If you have to be mentally happy, the type of sattvic diet you take, and if you have to physically fit without any metabolic disorder, also you have to have a good diet. इसीलिए आयुर्वेद आहार एक सेपरेट कैटेगरी मिनिस्ट्री ऑफ, क्योंकि ये मॉडर्न न्यूट्रिशन से इसकी कंसेप्ट थोड़ी भिन्न है. अच्छा आहार, समतोल आहार, संतुलित आहार जो बल, वर्ण, ऊर्जा, जीवन सब कुछ चलाता है, प्राणायातनम है, मनोस अन्नमयत्वम है. तो ये सब कन्वेंशनल मेडिसिन से थोड़ा डिफरेंट है. इसीलिए आयुर्वेद आहार की संकल्पना समझना, उसकी डिफरेंट कैटेगरी करना बहुत जरूरी था. तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मिलकर और एफएसएसआई को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि इसकी नीड समझते हुए, क्योंकि आयुर्वेद ये हमारे जीवन पद्धति से ना केवल जुड़ा है, लेकिन हमारे घर घर में बसा है. हमारी जितने भी, इट इज इम्बाइब्ड इन आवर कल्चर, इट इज इम्बाइब्ड इन आवर ट्रेडिशन. जो हम घर में खान पान खाते हैं, हम रिचुअल्स में, सीजन में सीजनल रेजिमेंट, डेली रेजिमेंट, समर में क्या लेना, ठंड में तिल लेना, ये सब आयुर्वेद ही है. उसको सबके सामने परोसना, उसका बिजनेस करना, क्योंकि आजकल स्विगी, ज़ोमैटो सब ऑर्डर करते ही घर में आ जाता है सब कुछ. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा आयुर्वेद में जो हेल्दी डाइट कहा है, वो कहीं भी नहीं आता है. फूड बिजनेस ऑपरेटर को अगर हेल्दी डाइट चाहिए, स्वस्थकर पथ्याहार चाहिए, तो व्हाट इज द वे. इसीलिए एफएसएसआई ने ये आयुर्वेद आहार की कैटेगरी कही. आयुर्वेद में समतोल आहार 6 रस वाला है. 6 रस होने चाहिए. हम कहते कि प्रोटीन, कैलोरी, फैट, ये सबका बैलेंस हो, एनर्जी हो. हम ये कहते हैं 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय. ये षड रसस्य. घर घर में हमारी जो थाली है ना, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चटनी, ये और 4 कलर, सभी स्टमन कलर, रेनबो डाइट, ये 6 रस उसमें होना चाहिए. मधुर, अम्ल, लवण, जैसे हमारा अचार है, खट्टा है, सब्जी है, दाल है, चावल, ये 6 रस आ जाते हैं. लेकिन 6 रस को मिलके अगर एक ही अगर स्मूदी बना दी, तो आयुर्वेद आहार हुआ क्या? नहीं हुआ. आयुर्वेद आहार ये कहता है, घर में भी देखिए दाल के ऊपर चावल के ऊपर दाल है, सब्जी है, कुछ हार्ड होता है, कुछ पतला होता है. तो सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, लिकेबल, जो जैम, अचार है, तो आयुर्वेद ये कहता है सब कुछ हमारे पंच महाभूतों को, सभी सेंसेस को नरिश करने के लिए अगर समतोल आहार है, तो खादीत, पीत, शीत, लीड, मतलब सॉलिड, हार्ड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, ऐसा सब कुछ होना चाहिए. आपने अगर एक खाली डब्बा ले लिया, उसमें कुछ कुछ आपने एक सूप ले लिया या कुछ नमकीन ले लिया, स्नैक्स ले लिया, तो वो आयुर्वेद आहार नहीं. आपको 3 टिफिन वाला डाइट चाहिए. घर में भी जो ऑफिस में जाते हैं वो, जिसमें दाल चावल भी हो, रोटी हो, सब्जी हो, और कुछ सलाद हो, कुछ अचार भी हो. सो आई थिंक आयुर्वेद ये 4 फॉर्म्स एंड 6 टेस्ट और ताजा हो. आयुर्वेद सात्विक आहार को ताजा कहता है. इसीलिए एफएसएसआई में जो एफबीओ फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उसमें जो एक नियमित, संतुलित, ऐसे प्रिजर्वेटिव ना डालते हुए जो ऑर्गेनिक है, ऐसे अगर क्वार्टर पैक में अगर जैसे जूस मिलते हैं, तो अगर हमें आयुर्वेद के आहार के ही कुछ ऑप्शन मिल गए, तो हम स्वस्थ स्वस्थ भी रह सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं. तो मैं एफएसएसआई को, हेल्थ मिनिस्ट्री को और आयुष मिनिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. हमारे 69 जो टेक्स्ट बुक है आयुर्वेद के, इसमें हजारों ऐसी हेल्दी रेसिपीज का खजाना है. लेकिन आज मार्केट में जाओ तो कुछ भी नहीं मिलता, खाली सॉफ्ट ड्रिंक मिलते हैं. तो हेल्दी खाना भी है मुझे, तो मेरे पास आज, जैसे मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे पास ऑप्शन कहाँ है. तो ये फूड बिजनेस ऑपरेटर के माध्यम से ये एक खजाना खुल गया है सबके लिए. तो मैं दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. ये सब आयुर्वेद आहार का रेगुलेशन बनाते समय मेरे साथ जो मेरे कलीग अनुपम श्रीवास्तव, कोमल जी, मेरे साथ मीता कोटेचा जो हमारी कमेटी की अध्यक्षा भी है, और सभी एडवाइजर्स, सभी हमारे साथ रहे, इन सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ. और ये जो कंसेप्ट है, ये रेगुलेशन है, तो मैं जल्द ही चाहती हूँ कि ऐसे हजारों रेसिपी भिन्न प्रांत के अनुसार, क्योंकि साउथ में जो है वो नॉर्थ में अलग होगा, ईस्ट में अलग होगा, वेस्ट में अलग होगा. तो हर किसी की, क्योंकि ऐसा भी है, हर किसी का टेस्ट में ध्यान रखे. 6 टेस्ट मतलब टेस्टी होना आयुर्वेद आहार.
बिल्कुल प्लान नहीं है। ऐसा नहीं है कि परहेज वाला मतलब बिल्कुल ही मीठा, नमकीन, खट्टे से विरहित। आयुर्वेद ये कहता है मीठा, नमकीन, खट्टा सब कुछ हो, टेस्टी हो, लेकिन वो हेल्दी हो। सो व्हाट इज़ आयुर्वेद आहार रेगुलेशन? इट इज़ टेस्टी, yummy and healthy diet. Thank you. Thank you, Dr. Tanuja ma'am, for giving light on the ahar, what is in Ayurveda ahar, telling us that it is so much healthy. My next question goes to Dr. Anupam sir. Anupam sir, can you please put some light on what are the different categories of Ayurveda ahar as per FSSAI regulation Ayurveda ahar 2022, and what are their requirements? Anupam sir, over to you. Thank you, ma'am. Thank you, Tanuja madam, and welcome, madam, for explaining the brief background or all showing all corners. What I said, that this specific regulation was brought in 2022. It was a vast area. It was area to be covered. Which food, which category we will consider. After the long discussion and deliberation, we come to a conclusion that we concluded a different type of the Ayurveda Ahar in a different categories. Category A, Category B, B1 and B2. Clarity on the subject. Category A where the dose formulation. Category A उस तरीके के category food है जो कि formula, जो एग्जैक्ट फार्मूला मैंने कहा 71 अथॉरिटेटिव बुक्स है जिसको कहते हैं शेड्यूल ए। मतलब आयुर्वेद किसको कहाँ रेफर करेंगे? अगर हमें रेफर करने की बात हुई ना, कोई प्लांट है से स्टीविया है या कोई भी ऐसा प्लांट है से जिंको है, तो क्या वो आयुर्वेद है या नहीं है, या ऑल द प्लांट्स आर आयुर्वेदिक प्लांट और ऑल आयुर्वेदा प्लांट आर बेसिकली। तो इन सबको दूर करते हुए वी ट्राई टू कॉल आउट बुक्स। एक सर्टेन 71 बुक्स हैं जो कि नोटिफाइड हैं। उन बुक्स में जो फॉर्मूला है अगर उसके अकॉर्डिंग, जिसको कि हम नॉन उस लैंग्वेज में कह सकते हैं क्लासिकल फार्मूला। क्लासिकल इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ द लॉ बट द फार्मूला एज अपीयरिंग इन दोज 71 बुक्स ऑफ शेड्यूल ए। उसमें 71 किताबें हैं। उन किताबों में जो फार्मूला अपीयर हो रहा है उन फार्मूला को हम कहेंगे कैटेगरी ए। ये क्लियर हुआ। फिर दूसरी कैटेगरी है कि कैटेगरी बी। बी कैटेगरी में हमने क्या किया, अगर फॉर्मूला तो है से आपने कोई बनाया, खिचड़ी बनाई, हमने फॉर्मूला में किताबों में 71 किताबों में देयर इज अ फॉर्मूला की खिचड़ी। अगर हम नया फॉर्मेट लाते हैं और वो अथॉरिटेटिव बुक्स में इंग्रेडिएंट वही है, इस फॉर्मेट में इंग्रेडिएंट वही है, तो इसको कैटेगरी हम B1 में कहेंगे। न्यू फॉर्मेट चेंज है, खिचड़ी के जगह से हमने कोई सिरप बना दिया, तो अगर हम वो इंग्रेडिएंट वही मेंशन है, नया फॉर्मेट है, वहां पे वो कैटेगरी बी हो गया। अब रही बात कि इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जब आप बनाएंगे कोई फार्मूला बनाएंगे तो एक लाइसेंसिंग की एक रिक्वायरमेंट होगी। तो उनमें क्या जो मैन्युफैक्चरर है, कैटेगरी क्यों की गई कि उसमें क्या क्या सप्लीमेंट करना है मैन्युफैक्चरर को। कैटेगरी ये है तो वो तो एक तरह से क्लासिकल फार्मूला है, किताबों में दिया, आपने कॉपी पेस्ट किया, तो उसमें वहाँ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो हैं कि वो इंग्रेडिएंट की सेफ्टी, क्योंकि ऑलरेडी वो किताबों में 1000 ईयर बैक लिखा गया है एंड दीज आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली। ये एक्सटेंसिवली यूज भी हो रहे हैं फार्मूला सम और अदर फॉर्म। तो एक तो कैटेगरी में वहाँ सेफ्टी रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। दूसरी कैटेगरी जो बी है, जहाँ की हमने क्या किया कि नया फॉर्मेट लिया, तो नया फॉर्मेट में क्योंकि फॉर्मेट चेंज है तो वहाँ क्या है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट की कैटेगरी आती है। तीसरी कैटेगरी है जो B1। बी के बाद B1 है। B1 में क्या है, न्यू इंडिकेशन। किताबों में तो दिया है खिचड़ी को आप किस लिए यूज कर रहे हैं, अगर उससे हटके अगर आप कोई नया इंडिकेशन कर रहे हैं कि जो कि नया फॉर्मेट में है, नए तरीके से वो किताबों में आ रहा है, तो वो दूसरी कैटेगरी की B1। और तीसरी जो कैटेगरी है जो B2 कैटेगरी है, एक जो किताबों में लिखा है उनसे हट के कोई नई डिजीज कंडीशन में इंडिकेट कर रहे हैं, या आपने कोई स्पेशल मेडिकल क्लेम किया, स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए किया, क्लेम तो नहीं कर सकते, हेल्थ क्लेम कोई ऐसा कर रहे हैं जो कि किताबों से इतर है, हटके है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज रखी है फूड की। इसी के हिसाब से इनकी लाइसेंसिंग क्राइटेरिया भी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी B1 एंड B2। तो इन 4 कैटेगरीज में इंटायर फूड की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी या जिनको आयुर्वेद आहार को कैटेगराइज किया जाएगा वो ये होंगे। और हमने जो अगर फार्मूला की जैसे मैंने बात की थी, आपको याद होगा कि अदर बोटानिकल्स का भी दिया है। एक ब्यूटी और रखी है कि वो प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स जिनका की जो इन किताबों में नहीं है, लेकिन अगर वो जो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पे मैच करते हैं,
आयुर्वेदिक प्रिंसिपल क्या है वो लंबा डिस्कशन हो जाएगा। जो रस गुण वीर विपा के पर्टिकुलर कैटेगरी है, अगर उससे मैच करते हैं और मैन्युफैक्चरर बता पाता है तो हम उनको भी आयुर्वेद आहार की कैटेगरी में डालते हैं। तो इस तरह ये हुआ, हमने कैटेगरी बताई, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, B1 एंड B2, ये कैटेगरीज हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और उसी तरह इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं लाइसेंसिंग के लिए वो अलग है। ओवर टू यू मैम, थैंक यू। Thank you, Dr. Anupam sir, for putting us some light की कौन सी regulation के हिसाब से categories हैं और क्या उनकी requirement है in short. I request Dr. Komal, what are the labeling requirements for the Ayurveda Ahar as per the regulation? Komal, over to you. लेबलिंग इसीलिए रिक्वायरमेंट है आयुर्वेदा आहार में कि कोई मिसलीडिंग ना हो इन फ्यूचर आयुर्वेदा आहार को लेके, है ना, कोई भी ऐसे क्लेम्स ना करे इन फ्यूचर जो कि ऑथेंटिक ना हो। सो लेबलिंग के लिए जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 को तो फॉलो करना ही है, बट उसके अलावा कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो स्पेसिफिकली आयुर्वेदा आहार के लिए है। हमारे रेगुलेशन में शेड्यूल ई है जिसमें आयुर्वेदा आहार का स्पेसिफिकली लोगो को मेंशन किया गया है। वो लोगो फ्रंट ऑफ द पैक पर रहेगा, जो जहां पर आप अपना ब्रांड नेम मेंशन करेंगे उसी के बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी के पास हम लोगों का आयुर्वेदा आहार का लोगो आपको मेंशन करना है। ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है फॉर आयुर्वेदा आहार। और साथ में आपको एक एडवाइजरी मेंशन करनी है कि इट इज फॉर डाइटरी यूज ओनली, not for anything else, or it is not a replacement of a normal diet, so it cannot be used as a substitute of varied diet. You have to mention this thing on the label, and you have to again mention that it to be stored out of reach of children's, and it is for oral consumption only. So it can ayurveda ahar products or recipes cannot be used for a parenteral uses like for IV infusions, for IM injections, or for Ryle's tube infusions, anything. It is for oral consumption only, not other than that. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Komal. Tanuja ma'am, will you please put some light on what is the licensing and approval process for the Ayurveda Ahar category? How FBOs and all need to get license and how their product can get approved? Over to you, ma'am. यस, अभी जैसे अनुपम जी ने बताया वेरियस कैटेगरीज, ए कैटेगरी जो क्लासिकल आहार है उसके लिए हमारे लिए आसान है, हमें बताना है कि कौन सी क्लासिकल टेक्स्ट से हमने लिया है और वो फॉर्मूला मतलब आयुर्वेद आहार का जो क्लासिकल है इंडिकेशन है उसके लिए हमारे पास बहुत दिक्कत नहीं है। बी कैटेगरी इज अ प्रोप्राइटी, हमने कोई चेंज किया तो उसकी एक लाइसेंसिंग प्रोसीजर भी है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, तो वो हम धन्यवाद देते हैं एफएसएसआई को, क्योंकि एक सेपरेट कैटेगरी जो 102 102 ये एक अप्रोप्रिएट कैटेगरी आयुर्वेद आहार की एफएसएसआई ने बनाई, उसका एक मार्क भी है। और उस कैटेगरी के अंदर जो आपने डैशबोर्ड बनाया है फॉस्कॉस में, उसमें वो डाउनलोड भी होगा। तो ये एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड की लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन एंड फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011 का 102 कैटेगरी में आपको ये सब कुछ मिलेगा। ए के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं। कई लोग हमें ये पूछते थे कि जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी बल्य पोषक वो बहुत सिमिलर है ये, तो ये और ये एक ही है क्या? तो ये बिल्कुल एक नहीं है, क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये केवल औषध के लिए है। मान लो च्यवनप्राश भी है, ये तो औषध है, तो वो बल्य है तो वो औषध करके उसी में जाएगा। लेकिन यहाँ हम कोई खिचड़ी या जो 71 किताब है आयुर्वेद की, चाहे चरक संहिता भी हो या सुश्रुत संहिता, क्योंकि वो सबको पता है, लेकिन उसमें जो औषधियाँ है, औषध कैटेगरी में जितने भी कई सारे सितोपलादी वगैरह ऐसे कई सारे औषधियाँ है, तो वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जाएंगे। लेकिन उन सभी संहिताओं में 71 जो किताबें आयुर्वेद की सबको परिचित है, उन्हीं परिचित किताबों में आयुर्वेद आहार की भी कई सारे फॉर्मूले हैं, रेसिपीज है, वो कहीं भी मार्केट में नहीं आई आज तक। तो उसी को ही अगर आपने लिया और वो आहार कैटेगरी में आपने बनाना शुरू किया, तो आपको केवल वो रिप्रोड्यूस करना है। और ऐसे मंडप या विलेपी या वागु ये नाम भी शायद किसी को पता नहीं होगा, लेकिन हमारे घर में मांड बनाते हैं, हमारे घर में सूप बनाते हैं, घर में बीमार है तो कुछ-कुछ थोड़ा-सा
पतला ऐसा सब बनाते हैं, बहुत अच्छा दलिया जैसे डिफरेंट चीज़ें भी बनाते हैं। ये सभी आयुर्वेद आहार की कैटेगरी में आते हैं और इन सब का कैसे हो, कैसे बना हो, इसीलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के माध्यम से एफएसएसआई ने एक कंपेंडियम भी बनाया है। जस्ट एज़ एग्ज़ेम्पलरी कि कैसे हो सकता है वो, किताबों में से कैसे रेसिपी आती है वो वही मात्र नहीं है, वो देख के हम सभी किताबों में से ए कैटेगरी का तो तुरंत लाइसेंस मिल सकता है। अगर बी कैटेगरी है, तो मतलब जो प्रोप्राइटरी है आपको थोड़ा नया बनाना है, चाय के जैसे टी बैग बनाने हैं, जैसे ऐसे कुछ भी नया पैकेजिंग करना है ग्रैन्यूल्स डिफरेंट फॉर्म बनाना है, तो वो बी कैटेगरी में आपको प्रायर अप्रूवल एफएसएसआई के जो रेगुलेशंस है, वो वही रेगुलेशन उसमें एप्लीकेबल है, लेकिन उस कैटेगरी का एक ड्रॉप डाउन मेनू जो ईज़ी टू यूज़ है, वो 102 कैटेगरी के अंदर आपको तुरंत मिलेगा और वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स 2017 का जो रेगुलेशन है, उसके तहत कैटेगरी बी का संचालन होगा। Thank you, ma'am. So, as ma'am has mentioned, the product approval process for the Ayurveda Ahar will be like FBO has to see कि ये ड्रग कैटेगरी में आएगा या फूड कैटेगरी में आएगा. अकॉर्डिंगली उन्हें अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है. अगर ड्रग फॉर्मेट है तो उधर जाना है CTSCO में. अगर फूड आहार कैटेगरी में है तो इधर आना है. थोड़ा सा और आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अनुपम सर टू प्लीज टेल अस सर अबाउट मोर हाउ आयुर्वेद आहार इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यूट्रास्यूटिकल्स. देखिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये क्वेरी काफ़ी है। इवन इवन द क्वेरी ये भी है कि हाउ द आयुर्वेदिक ड्रग्स आर डिफरेंट फ्रॉम, राइट? तो तीनों को मैं क्लैरिफाई करूँगा और एक्सपेंड कर देता हूँ आपके क्वेश्चन को कि एक तो चीज़ ये है कि ये हमारी जो अथॉरिटेटिव बुक्स हैं, देखिए आयुर्वेद की, मैं ड्रग से शुरू करता हूँ, न्यूट्रास्यूटिकल तक आ जाऊँगा। तो एक तो ये है कि सर्टेन बुक्स हैं, शेड्यूल, जैसे फर्स्ट शेड्यूल है, जैसे मैंने पहले बताया कि शेड्यूल ए है, मतलब जो चीज़ों को डिटेल्ड अगर एक्ट में, रेगुलेशंस में लाते हैं तो डिफरेंट शेड्यूल्स में डिस्क्रिप्शंस होते हैं। उन डिस्क्रिप्शन में शेड्यूल ए है, ये हो गया अपने आयुर्वेद आहार का, जिसमें 71 बुक्स हैं। तो इन बुक्स की जो रेसिपी है, उनमें क्या-क्या है, ये आएगा आयुर्वेद आहार में। एक जो कैटेगरी में ड्रग की बात करता 54 बुक्स, तो 54 बुक्स में जो फ़ॉर्मूले आ रहे हैं, वो आयुर्वेद आहार में आएँगे। और जो न्यूट्रास्यूटिकल की जो कैटेगरी है, न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी है, वो डिफ़र है। वो डिफ़र है हमारे उसमें, ये नहीं है कि ये इन किताबों में आए, पहली बात। दूसरी कि हम, जैसे हमने कहते हैं, वही फ़ॉर्मूला लेंगे या वही इंग्रीडिएंट्स लेंगे या उन इंग्रीडिएंट को लेंगे जो कि इन किताबों से आ रहे हैं या जो आयुर्वेद के प्रिंसिपल में है। यहाँ आयुर्वेद आहार में हम कोई डिज़ीज़ क्योर क्लेम नहीं करते, मेक वेरी श्योर। हम डिज़ीज़ के क्योर का क्लेम नहीं करते, सिर्फ़ हम बेनिफिट का क्लेम करते हैं। हम क्या करते हैं, आयुर्वेद आहार में जो टेक्स्ट के बेस हैं या जो आयुर्वेद के प्रिंसिपल के बेस हैं, उन चीज़ों को हम आयुर्वेद आहार के हम वहाँ क्लेमेंट करते हैं। जबकि न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में जब बात करते हैं, तो दीज़ आर द बेस्ड ऑन द मॉडर्न न्यूट्रिशन एंड फार्माकोलॉजी। जो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से इट मे और मे डिफर। न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी जो है वो बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजी होगी, बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन कंसेप्ट ऑफ द कंटेम्पररी साइंस, वेयर एज आयुर्वेद आहार के जो हमारे क्लेम्स हैं, वो बेस्ड होंगे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के, आयुर्वेदिक टेक्स्ट के। हमारी जो ट्रेटाइज है, वही आते हैं बाद 71 बुक्स की जो डिटेल्स है उनके बेस में। दूसरा क्या है कि जैसे मैंने कहा कि हेल्थ सपोर्टिव क्लेम है, क्योर क्लेम हम नहीं करते हैं। मेक वेरी श्योर कि कोई भी आयुर्वेद आहार, कल को आपने कहा कि हमने पेय बना के ठीक कर दिया, तो हम डिजीज क्योर क्लेम नहीं करते आयुर्वेद आहार में। वेयर एज जब न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में जाते हैं तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लेम करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्लेम करते हैं। और जो इंग्रेडिएंट है, और जो आयुर्वेद आहार के जो इंग्रेडिएंट है, फिर वही बात कि वो 71 बुक्स में आएंगे, या कोई नया इंग्रेडिएंट है जो आयुर्वेद के प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। तो जो मैंने पहले कहा रसगुण विपाक में, तो उसको हम मान लेंगे वो इंग्रेडिएंट होगा आयुर्वेद आहार का। जबकि न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में देखें तो वहाँ क्या है, मिनरल्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, आइसोलेट्स हैं, विटामिन हैं। तो दीज आर द कैटेगरीज वेयर द न्यूट्रास्यूटिकल टॉक्स अबाउट। तो देयर इज अ डिफरेंट इन द कंसेप्ट एज वेल द इंग्रेडिएंट।
और फिर वही बात कि हम आयुर्वेद को लेके लीड कहाँ से ले रहे हैं, लीड उन्हीं 71 बुक से ले रहे हैं। अभी जैसा मैडम ने भी बताया कि मैंने भी पहले बताया था कि कैटेगरी ए है, उसको वी हैव ट्राई टू कल आउट फ्रॉम ऑल दोज कॉमनेस्ट रेसिपीज विच आर गुड फॉर द कॉमन पीपुल। जो क्लासिकल फॉर्मुलेशन है, दैट वर्क वाज असाइन्ड टू एनआईए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। वी हैव कम अप ए आयुर्वेद आहार कंपेंडियम। तो probably FSSI is very much instrumental in bringing very quickly those documents. तो हम एक तरह से हम जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है या इवन द कॉमन मैन, जो कॉमन मैन है वो चाहता है कि अगर मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊं, तो बहुत सारी किताबें हैं। अभी तो मैं अगर बात करूं 71 बुक्स या 54 बुक या एन नंबर ऑफ द बुक, तो हमारे जो कॉमन पार्टिसिपेंट है उनको तो मालूम ही नहीं है। और फिर अगर मालूम है उन किताबों को तो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, या उनकी अवेलेबिलिटी है तो उसमें से वो किसी को, क्योंकि बुक्स में तो बहुत कुछ है, बुक्स में तो दवाएं भी हैं, बुक्स में फूड रेसिपी भी है, तो इट कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन। To avoid those confusions, at least for the classical formulation, at least for those formulation which has been written in these books, we have called out in a Pharma Aveda compendium. This is a series. First volume is going to come, and second will come, and third will come. These will be detailing all those formulation, all those recipes which are good in the reference to the Ayurveda. What do you mean? Probably I try to cover that as much possible. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So, Dr. Komal, can you please, like sir has already told us the differentiation between the nutraceutical, and ma'am has differentiated between the drug and ahar category. Dr. Komal, can you please put some light on how, like, is Ayurveda ahar is free from additive and preservatives, or they can add some, what are the requirements? यस मैम, ये बेसिकली बहुत बड़ा डाउट है कि जो आयुर्वेद आहार कैटेगरी है वो फ्री ऑफ प्रिजर्वेटिव्स रहेगी। हम कुछ ऐसा खाएंगे जो बहुत ही हेल्थ, मतलब उसमें एडिटिव्स नहीं रहेगा। आज बहुत बड़ा कंसर्न है, एक मदर भी अपने बेबी को कुछ खाने को देती है तो उसका एक कंसर्न रहता है कि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो हम कैसे दें उसका, क्योंकि हेल्थ पर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जब रेगुलेशन हमने फॉर्मुलेट किया, तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना हम बहुत कम प्रिजर्वेटिव्स रखें, बिल्कुल जो कि आज के एरा में थोड़ा रिक्वायरमेंट है कुछ प्रिजर्वेटिव्स का, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी है, देन उसकी पैकेजिंग होनी है, देन वो मार्केट में आएगा, तो एटलीस्ट उसके पास कुछ शेल्फ लाइफ तो रहे कि वो सरवाइव करे मार्केट में। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने शेड्यूल सी में लिस्ट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स प्रिपेयर की। उसमें हमने 32 प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सके, थोड़ा बढ़ा सके, और वो प्रोडक्ट और वो रेसिपी मार्केट में इजीली सरवाइव कर सके कुछ टाइम के लिए, ताकि उसका मैन्युफैक्चरिंग और जो एज अ फूड बिजनेस जो आगे हमें जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं आयुर्वेदा आहार को एज अ फूड बिजनेस, वो उसका जो भी हमारा इम्पोर्टेंस है वो सक्सेसफुली पूरी हो पाए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने शेड्यूल सी में कुछ स्पेसिफिकली बहुत मिनिमल 32 एडिटिव्स रखे हैं, ताकि बस हम उसका शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। तो अगर आपको कोई भी एफपीओ जब भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है आयुर्वेदा आहार की, तो उनमें से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, उनकी फूड कैटेगरी के अकॉर्डिंगली उनको जो भी प्रिजर्वेटिव है वो उसमें से यूज कर सकते हैं। Thank you, Dr. Komal. So this was the question we were receiving from the participants in the chat box. So thank you for answering their queries. Dr. Tanuja ma'am, can you please tell us what is the criteria for disease risk reduction claim? Like, can any Ayurveda ahar manufacturer claim for the disease risk reduction? DRR जो कैटेगरी है, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि यही डिफरेंस है आहार और पथ्याहार। जैसे आपने अनुपम जी ने, हमने आहार से शुरुआत की, विच इज अ फूड, और वही आयुर्वेद आहार होगा क्या, ये भी क्वेश्चन होगा कि जैसे हम दाल चावल रोटी लेते हैं, वो तो आयुर्वेद में भी कहा है बल वर्ण ऊर्जा सभी के लिए, तो रोज का दाल चावल रोटी आयुर्वेद आहार नहीं हो सकता। दैट इज अ क्लियर कट फूड, और उसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज है, FSS है कि उसके डिफरेंट नॉर्म है। फिर न्यूट्रास्यूटिकल हो गया, जो फंक्शनल फूड है कि जो किसका कुछ एक्सट्रैक्ट किया, टैबलेट बनाई और उसी को ही आपने उसके कुछ क्लेम बना दिए। आयुर्वेद आहार ये एक ऐसी कैटेगरी है कि जो आयुर्वेद में जिसको परहेज कहा, पथ्याहार कहा, मतलब अन्न और पथ्य दोनों में फर्क है। अन्न रोज का खाना और परहेज पथ्य एक विशिष्ट ऐसे कंडीशन में कुछ उसमें बेनिफिट्स हो, हेल्थ के बेनिफिट्स हो, और किसी अवस्था में, जैसे महेशु निशामल की प्रमेह में यव की रोटी खाने के लिए
और आंवला और हल्दी डाल के खाने के लिए कहा, लेकिन है कहाँ ऐसे आंवला डाल के हुआ जौ की रोटी, ऐसा प्रमेह हमें डायबिटीज में है नहीं। तो उसके लिए हमें एक ये आयुर्वेद आहार कैटेगरी बनाई। तो ये अगर ऐसा पथ्याहार है, जैसे भैषज रत्नावली, ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं, हर एक व्याधि के आगे उन्होंने परहेज की एक बहुत सारी रेसिपी की एक लिस्ट ली है कि ये ऐसा करके खाए, ऐसी रोटी खाए, करेला का और कुछ डाल के उसको और बना दे। तो ये सब आयुर्वेद आहार हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो सभी एफबीओ यही चाहेंगे कि फिर हम उसमें उसका इंडिकेशन, मतलब उसका बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट, उसका हम डिसीज रिस्क रिडक्शन, कौन से व्याधि में उसकी फलश्रुति है, कौन से रोगी अवस्था में है, वो लिख दे। तो ग्रंथ में लिखा है, और वो प्रमेह में, श्वास का मतलब रेस्पिरेटरी कंडीशन में, अस्थमा में कई सारे ऐसे सूप है कि जिसमें दशमूल डाले तो दशमूल यवागु हो जाती है। मोटापा है तो जिसमें अपने ऐसे कई सारे सूप बनाए, इसमें त्रिकटु वगैरह डाल दे तो व्योषादि यवागु ऐसे बन सकती है। और वो अपने रेडीमेड मार्केट में लाए तो सभी जो मोटे लोग हैं वो दूसरा वही खाएंगे, टेस्टी होगी। लेकिन आप ये क्लेम कर सकते हैं या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो फिर आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा मोटापा के लिए ऐसा फिर वो मैजिक रेमेडी ड्रग एक्ट को आपको पकड़ेगा। तो देयर इज अ वे ऑफ DRR, डिसीज रिस्क रिडक्शन। तो ग्रंथों में लिखा है वो आपको प्रूफ ऑफ एविडेंस तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको कुछ एविडेंसेस भी देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके ये पब्लिश लिटरेचर हो, किसी ने रिसर्च किया हो या आपने पायलट स्टडी किया हो, तो पब्लिश्ड एविडेंस इन द पब्लिक डोमेन और आपने किया हुआ ऐसा कुछ भी क्लासिकल और एविडेंस बेस्ड इन पब्लिक डोमेन, ये FSSAI के नॉर्म के साथ प्रूफ ऑफ योर क्लेम, डिसीज रिस्क रिडक्शन, और उसकी जो लैंग्वेज भी होती है, आप किस कंडीशन का क्लेम करना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कैंसर की बीमारी के लिए क्लिक कर सकता है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन ये उसके लिए रिस्क को बेनिफिट है क्या, अगर है तो यू हैव टू प्रोवाइड द एविडेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज पर द FSSAI रेगुलेशन। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you for putting some light on the how they can make the disease risk reduction claim and what is the process, what documentation is required for getting the approval. So my next question is Dr. Anupam. Sir, from where we can get the reference of formulating Ayurveda Ahar? Like if someone new is in the field and they want to get the formulation Ayurveda Ahar, so how can they formulate Ayurveda Ahar? Dr. Anupam, sir, over to you. I anticipated you are going to ask me a question that will appear on the screen. Thank you for asking. Yes, I have been saying since the morning, and again I would like to, for the person who is new, either he is for the self-use or for the manufacturing, he is a food business operator, or any person who want to jump from the medicine to the food sector. Yes, you want the reference. Yes, for the reference purposes, broadly it could be two categories. Let me explain. Broadly, it could be two categories. If you talk about the Ayurveda, one could be you are copying the formula and you are making the recipe. One category could be the, and second category would be the change. Either in the change of dosage form, either the change of the recipe, or then you are new claims. So broadly, you can say one is a dose formulation which are already manufactured, or already recipe has been made, available in the classics, in the category A, and rest of the category B, B1, B2, what I was planning. So for the purpose, if I want to make the same formula, what is written in the book, I don't want to apply any innovation. I just want to carry with those formulation which are already written in these Schedule A or 71 books. I have to search for the site. First, you can search for the site where the compendium will be appearing. The moment it start the licensing, that is a compendium. Compendium first volume is there. Again, we will coming the series of such volume. In addition to that, there is the, if you can Google, there is a notification, Ayurveda notification is there. There's a list of the books, 70 books are appearing in those regulation. I can show you, give me a chance, time. Yes, this is a regulation. This is a regulation already in a public domain, which details, this came on the 5th May 2022. You can Google it and you can find this regulation where the list of the books, what I have been talking since the morning,
These are the list of the Schedule A. This comprises 71 books. This is a list of the books. You can see if it is visible on the screen. These are the list of the book. So in these books, you can find the formula. In addition to that, even FSSI has pooled certain set of the books, maybe something around 40, 45 or something around 50 out of these 70 books. So these are also in physical. I will request to FSSI, if some food business operator comes to you, kindly handhold them, kindly support them. In addition, where is any Ayurvedic library, these most of the books are available. And if you simply what I said, you want to copy the formula, the compendium will be coming. The first volume we are looking forward to FSSI and the relevant ministries to release it. So accordingly, you can get the reference of those formula you want to prepare for any innovation, for any new development. You can take lead from these books. I think I tried to answer the question. Over to you, ma'am. Yeah, thank you so much, sir. So, Dr. Komal, can you please put some light on what is the process hygiene and food safety criteria for Ayurveda Ahar? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मैम. एज लाइक वी ऑल नो कि हमने जो रेसिपीज पिक की हैं वो हमने अपने आयुर्वेदिक टेक्स्ट से और जितनी भी हमारे ऑथोरिटेटिव आयुर्वेदा बुक्स हैं जो हमारे शेड्यूल ए में मेंशन्ड हैं वहां से हमने पिक की है. सो ये बुक सारी काफी ओल्ड एरा से आती हैं, तो आज के मॉडर्न एरा में दोनों चीजों को हमें कंपाइल करना है कि जो उस टाइम पर, जैसे उस टाइम पर हम फूड प्रोसेसेस, जब भी हम फूड बनाते थे तो वहां पर हमने पुट की बात की थी फॉर हीट के लिए, पर लेकिन आज के एरा में हमारे पास बड़े बड़े फ्लेम्स, ओवंस वगैरह सब अवेलेबल है मार्केट में. तो उसको उसके साथ वो रेसिपीज वहां पर जैसे लिखी हुई हैं हमें उनको वैसे ही बनाना है, बट उसकी क्वालिटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की सिमिलैरिटी को मेंटेन रखना है, कि ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रखना है. सो इंडस्ट्रियल स्केल अप के लिए आप मैन्युफैक्चर और पैकिंग जो है फूड का वो अकॉर्डिंगली आज के न्यू एरा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. उसके लिए आपको फॉलो करना है गुड हाइजीन practices, GHP and GMP, good manufacturing practices as per the Schedule 4 of Food Safety and Standard Licensing and Registration of Food Businesses Regulation 2011. And manufacturers can also make their standard SOPs Ayurveda आहार को prepare करने के लिए, but उनको comply करना है जो भी philosophy आयुर्वेदा आहार बनाने की या उसको कुक करने की जो भी हमारे एंशियंट क्लासिक्स में मेंशन है उस पर स्टिक रहना है. हमें उसकी ऑथेंटिसिटी को नहीं खोने देना है, बट मॉडर्न के साथ ऐड ऑन करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ऐड ऑन करके एक न्यू कैटेगरी मार्केट में हमें लानी है. Dr. Komal, we are moving towards the ends of this session. So I would request Dr. Tanuja ma'am to please put some light. What are the initiatives which have FSSAI and Ministry of Ayush is undertaking to support and facilitate stakeholders in the Ayurveda Ahar sector? थैंक यू वेरी मच. क्योंकि ये एक ऐसा जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और FSSAI और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, कि ये आयुर्वेद आहार जो हेल्दी फूड है, टेस्टी फूड है, वो सभी के घर घर में मिले और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें. अगर हम कहते कि कहीं देश के कोने में, जहाँ हमारी केदारनाथ के एंड में अगर हम गए थे, तो वहाँ हमें ऊपर जहाँ देश का आखिरी ढाबा ऐसे लिखा था जब मैं गई थी गोमुख की यात्रा पे, और वहां मुझे क्या मिला, तो मुझे वो 5 रुपए के अंकल चिप्स मिले. मतलब वो भी वहां भी अवेलेबल है. और मेरे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प आती है उसको मैं कहती हूँ कि वो छुट्टी में जाती है और अपने बच्चों को वो बोलती है कि मुझे मेरे बच्चों को खिलाने के लिए जल्दी जाके कुछ स्नैक्स देना है, तो वो भी वो 5 रुपए का अंकल चिप्स ही उसको दे देती है. So it is readily, easily available to everyone's under their plate, even though unfortunately unhealthy snacking is available. और आम आदमी के अफोर्डेबल रेट में और एवरीवन अफोर्डेबल ये अवेलेबल है. तो हम बातें बड़ी बड़ी करें, लेकिन अगर काम ऐसा करें कि छोटा सा, कि जो हर घर में इजीली अवेलेबल हो. हम कहते कि आहार यही हमारा आरोग्य का पिलर है, मेरुदंड है, आहार पे हमारा फ्यूल है इंजन का. तो ये अवेलेबल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये जो आयुर्वेद आहार की अपनी FSSAI ने कैटेगरी बनाई, वो घर घर तक पहुंचे. सबसे पहले तो अवेयरनेस करना चाहिए, इसलिए जैसे ये अवेयरनेस प्रोग्राम
सभी स्टेक होल्डर्स के किए ने, तो ये कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करना ये भी तय किया है। इस साल के हर साल आयुर्वेदा डे मनाते हैं, तो हमने ये प्रपोज किया है कि आयुर्वेदा डे भी में भी आयुर्वेद आहार के ऊपर सभी स्टेक होल्डर्स, मतलब जो महिलाएं, मुझे कहा गया कि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिला उद्योग के लोग भी जुड़े हैं, एफबीओ जुड़े हैं, फीड बिजनेस ऑपरेटर है, डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर है, बिजनेस है, एफएमसीजी मार्केट के लोग हैं। तो सबको इसी को ही, जैसे अभी कोमल ने और अनुपम ने जी कहा, तो इंडस्ट्री स्केल अप करे, क्योंकि कुक और शेफ अगर कलिनरी, होटल, रेस्टोरेंट और कलिनरी साइंस में जितने भी शेफ है, होम साइंस से फूड है, उनको अगर हमने आयुर्वेद आहार सिखाया, रेस्टोरेंट से लेके 5 स्टार तक और एयरपोर्ट से लेके रेलवे में, सभी में ये कैटेगरी बन सकती है। लेकिन इन सब के लिए ये बनाना भी है, किसी को लाइसेंस भी करना है, तो कैसा हो ये शुरू में करने के लिए एक कंपेंडियम शुरुआत में बनाया, क्योंकि जितने भी 71 किताब है, इसको कहते हैं क्लासिकल बुक्स एंड क्लासिकल रेसिपीज। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाइसेंसिंग वाले जितने भी लाइसेंस रेगुलेटर्स है, ये इसको कहते हैं अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट मतलब क्या है कि हर स्टेट में जो लाइसेंस देने वाली जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी ड्रग एक्ट ने दी है कि इन किताबों की रेसिपी का पन्ना अगर आपने जोड़ा और आपने प्रूफ दिखाया कि इस किताब के अनुसार ये रेसिपी है, डिक्टो वही है और डिक्टो वही उसका उपयोग हमने लिखा है लेबल पे, दैट इज द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। तो ये हमारे एफएसएसआई के भी में जो शेड्यूल ए में 71 बुक्स है, वो हमारे लिए अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है। ये सब टेक्स्ट किसी के पास तुरंत नहीं होगी, एफएसएसआई के पास भी 45 है, टोटल 71 है, हर किसी के पास होगी। लेकिन इन सब में से आहार की रेसिपी को छांटना और वो कहीं एक जगह पे रखना कि ये आप पकड़िए, उसको कॉपी करिए और बनाइए, शुरू कर दीजिए, दिस इज सो सिंपल। तो ये करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और एफएसएसआई ने मिलके एक कंपेंडियम बनाया, एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और हमारी पूरी कमिटी, ये सब ने मिलके उसके कई सारे, ये सही है गलत है उसका रिव्यू किया और एक कंपेंडियम का वॉल्यूम 1 अभी पब्लिश होने जा रहा है। ऐसे कई सारे वॉल्यूम से धीरे धीरे जितनी भी रेसिपीज है वो धीरे धीरे कंपेंडियम में आएगी। वो एक दाखले तरीके से उदाहरण मात्र है, दैट इज नॉट द ओनली अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, बट इट इज जस्ट अ पायलट guiding document that is indicative, so that you can find out different recipes and also claim under category 1, that is a classical ग्रंथोक्त रेसिपीज। और जो प्रोप्राइटरी है, इसके लिए कई सारे वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार हम हर जाके, हर दिन हर घर आयुर्वेद, ऐसे हर घर आयुर्वेद का खाना और खजाना, ऐसा करके हम इसी को प्रमोट करेंगे और आने वाले कल में हम सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, या आयुर्वेद आहार के माध्यम से। ऐसी ही हमारी एक छोटा सा उद्देश्य है, वो शायद आने वाले कल में हम हासिल करेंगे, हमारे ऐसे ही सभी कलीग्स के माध्यम से और हमारे स्टेक होल्डर के माध्यम से। धन्यवाद। Thank you, ma'am. So my last question to the panelists, Dr. Anupam sir, what type of application can be submitted based on the claims made for Ayurveda Ahar products? Yes, very nice question. Since we have discussed a lot, what could be food, what is the category, what is the compendium, madam, very nicely said. And yes, before answering your question, yes, what madam said, we are making such seminars and webinars and we are also selected reason wise also, where she has been very instrumental in supporting and delivering also even the various platforms. It is a social platform or Arogya platform or something else, or any mailers, we are pushing very hard, and shortly we are going to conduct a different part of the country, north, south, east, west. We are going to conduct these seminars, these webinars, so that a common man, including the food business operator, get acquainted what has to be done, what is just how the goodness of Ayurveda travels the masses, not only the country, across the country. मैं शुरू में ये भी बताना भूल गया आपको, शुरू में fortunately I got a time, I have the time, take liberty to talk, कि many of the such formulation are being patented across the border.
तो हमारा एक स्टेप ये भी था कि जैसे कि गोल्डन मिल्क है, आप सिंपल देख लीजिए गोल्डन मिल्क, COVID period में it got a lot of attention and people are making as per their own understanding, as per their own formula. Similarly, different kind of the lattes, different kind of the even the wheat flours added with the beauty of Ayurveda, added with the Sugandha. So for those purpose also, to bring those commerce to the sector, to spare, to protect our ancient wisdom as per our own patent understanding, as per the patent regulations of the country, we brought this regulation. Say you rightly said which kind of, as per the, if you are based on application basis, it could be in a three way. One application could be without any label claim. You want to make a formula without any claim, yes, you can apply for certain set of the very minimum fees you can apply for. Another type of the application will be the label claim, that is a health benefit claim. You are claiming that this is good for eyes, it is good for the stomach, it helps in the digestion, and this could be another set of the application with a label claim. And third could be very important, that is a label claim with disease risk reduction, upon which the professor madam Nesri madam had deliberated detailed. So broadly we can have a two. One is a registration application could be done, health benefit claim could be done, and a third would be disease risk reduction. Yes, I want to clear if it is a, it definitely the fee amount which is still has to be disclosed. But at least since I can give a some small hint, though may not be official for here to speak on those, it could vary. It could vary. Since you want to make some disease risk reduction claim, that will definitely will be different than a simple health benefit claim. So application could based on your claims and could be three category: without any label claim, health benefit claim, and the disease risk reduction claim. So there are three basic application format could be, or you say there are types of the application which could be submitted to the FSSI and to the I just like to this thing inform the audience also ki a separate cell has been constituted with the authorities of the FSSI and expert from the Ayurveda people, which is looking exclusively, which are working a lot for those address to those issues which are being cropping to them, the queries which are going to them. And very soon, if the things go in a couple of months, we will able to, if the authorities permit to launch this formulation, it will definitely open a new visitor for the development or the growth, not only to giving the growth to the sector, not only giving the goodness of Ayurveda to masses, but also to addressing the SDG 2. This is the hunger through this Ayurveda Ahar, a novel step taken by the both of the Ministry of Health and Ministry of Ayush and all our seniors to guide us. Over to you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, all the speakers. We can take few questions also, which we have received from the chat box. Very generic question. Few questions are related to the use of additives and preservatives, which has already been addressed by our esteemed panelists. And then there were the questions regarding the regulations and all, where they can get the regulation. So that has also been addressed in the chat box itself. The link has been provided. Further, if anyone who wants to see the regulation and requirement, they can visit the FSSAI website under the regulation tab. They will get this Ayurveda Ahar regulation and all its requirement and other related standards as well. Further, besides this, few have asked regarding this volume 1 of the compendium of these recipes. So for the information of the participants, that is in the process, and very soon it will be uploaded on the website of FSSAI as well as Ministry of Ayush and other public domains as well. So from there, you can take the reference of these recipes, which ma'am and sir has already mentioned. Moving forward towards the closing, so we have discussed on the food safety, what are the public health concerns, what are the sustainable health care practices, and like bringing together all the stakeholders and the policy like FSSAI and Ministry of Ayush and NIA and all. We have see what is the regulatory requirement, what are the definitions, what is the classification, how the application can be made, what are the manufacturing practices to be followed, and licensing, what are the licensing protocols, how the Ayurveda Ahar can be labeled, what are the labeling requirements. So as we conclude the session, I thank all the esteemed panelists, all the participants for being actively participating here. Key takeaways which we have included in today's session for the understanding, we have understood how the categorization of Ayurveda Ahar is as per the regulation, what are the licensing and labeling requirement,
We learned what is the importance of the classical references and rational in the claim substantiation. So we hope this session has provided the valuable insights and practical guidance to you. So thank you everyone for your active participation. Thank you. Thank you. Namaste to all. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Namaste. Looking Thank you all the panelists. Now over to Ajita for concluding remarks. Ajita, over to you. थैंक यू सो मच एवरीवन, सीओ सर, ईडी सर, जिनके मार्गदर्शन से ये वेबिनार हो पाया. थैंक यू एसबीसी टीम, आईटी टीम एंड अनदर डिविजन्स जिन्होंने इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े रहे. मैं आशा करती हूँ कि अगले वेबिनार में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए सेशन के साथ. थैंक यू एवरीवन वंस अगेन. Thank you. Namaste. Namaste. Madam, namaste. Sahil ji, Aruna ji, and everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Namaste, team FSI. Namaste, madam. Thank you, Komal. Thank you, Aruna ji. Thank you to all. Yeah. Thank you everyone. Thank you.